mains and prelims of the NTSC. And what was the syllabus for that one? I told you all these things in your last lectures. Okay. Now students, today I will tell you about the what are the topics which we are going to study in your maths. So let us start. For NTSC Maths 2021 math syllabus, number 1, number system, algebra, trigonometry, geometry. In a geometry we are going to consider triangle plus circle. Fifth one, stats and probability, and sixth one is coordinate geometry. So we will take the first topic, number system. Wait a minute students, I am just coming. Sorry. So today we are going to study the number system. So number system you have studied in your lower standard, that is which is divided in the two parts, real number and the imaginary number. So what is real number? Real number is always divided into two numbers, that is two categories, rational number and the irrational number. Again irrational number is divided into two parts, that is fractions and integers. Now, when I am talking about the integers, in the integers we are getting some parts, that is even, odd, natural and whole number. So this is our main, we are going to study, that we have studied in your lower classes. So what is even number? Even number which are the multiple of 2 is said to be the even number. Odd numbers which are not the multiple of 2. So that is said to be the odd number. Natural numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5 is all the natural number. Okay? Whole number, when we will add 0 to the natural number, it is said to be the whole number. So this is all the simple terms which you have studied in your lower standard. Okay? Now, so we are going to start with the rational number. What is rational number? Rational number. Rational numbers which can be written in the form of P upon Q. Q should not be equal to 0 and PQ belongs to integers. They are integers. And one more property, that is PQ should be coprime. Coprime. Now, PQ belongs to integers, so you should have to know the integers. Integers means you have studied in your number line, that is when we draw the number line, you will get here 0, here it will be the positive numbers and here it will be the negative numbers. Okay? So when this combination of positive, negative and 0, that is said to be the integers. In a integers, remember students, decimal part and fractional part are not allowed. Fractions are not allowed. In which integers? Okay, remember this one. This is the rational number. Suppose I am writing here, all the natural numbers are rational number? Yes. I am writing 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. देखो अभी इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1. Like this all number can be, denominator can be adjusted with the 1. तो इसका मतलब all the natural numbers are rational number or not? See, both are in the form of P upon Q. हो गया P upon Q फॉर्म में.
q is not equal to 0, 1 is not equal to 0, and both are the integers. ठीक है, so all natural numbers are your integers. Okay, suppose I am writing this is natural number. Suppose I am writing here 0 up 0. So can you say the 0 is a rational number? Yes. When I write the denominator 0 upon 1, of course condition is following, all the p 0 and 1 are the integers, q is not equal to 0, and therefore 0 upon 1 is a rational number. Now when I'll talk about the 1 upon 0, अभी ये बोलते हैं q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. हम लोग रैशनल नंबर में जो कंडीशन डालते हैं why q should not be equal to 0. When we put the condition that why q is not equal to 0, so there is some reason. Let me tell you about that one. Suppose I am writing here 10 upon 2. इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 5. So 2 multiply by 5, we will get the result 10. Am I right? Suppose take more examples. 6 upon 3. What you will get the result? 2. 3 multiply by 2, you will get 6. ठीक है? So you consider this is a p10 upon 2 is a rational number, 10 upon 2 are the integers, 6 upon 3 is the integers. Okay, but when I talk about the, suppose I am writing here 10, this is what I am telling you कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए. हम लोग क्यों कंडीशन डालते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो q अगर मैंने 0 लिया तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे 10 आने वाला है. 0 को किससे मल्टीप्लाई करे कि हमें 10 आने वाला है. तो ये तो इम्पॉसिबल केस हुआ ना. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. So this is not defined, or you can say that this is an impossible case, or you can say that it is not defined. अगर ये not defined है तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होने वाली है. इसीलिए हम लोग हमेशा कंडीशन डालते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 या समथिंग अपॉन 0 इज़ ऑलवेज नॉट डिफाइंड. रिमेंबर दिस थिंग. अभी सो वी हैव स्टडीड दिस रैशनल नंबर. तभी रैशनल कैसे कैसे टाइप के होते हैं, लेट अस स्टडी. सपोज आई एम राइटिंग हियर 25 upon 10. इसका आंसर आ जाएगा 2.5. 60 upon 4. 60 upon 4 या पॉइंट में ले लो, कुछ भी ले लो. 60 upon 4 तो आ जाएगा 15. तो इसको जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट या जो भी है वो टर्मिनेट, जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कहीं तो भी ख़त्म हो रहा है. तो ये भी रैशनल नंबर है. 25 upon 10 इज़ अ रैशनल नंबर, बट इस डिवीजन टर्मिनेट समवेयर. इसका भी डिवीजन टर्मिनेट हो रहा है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रैशनल नंबर टर्मिनेट्स. ठीक है. अभी कभी कभी केस में वो रैशनल नंबर है पर ये टर्मिनेटिंग की पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर 1 upon 3. 1 upon 3 मैंने लिख लिया. तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 0.333333 एंड सो ऑन. यानी कि मेरे को क्या मिलने वाला है इसका रिजल्ट? व्हाट आई विल गेट 0.3 बार. सो व्हाट ऑब्जर्वेशन डू यू फाइंड हियर कि यहाँ पे जो नंबर है डेसिमल, जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है वो फिनिश नहीं हो रहा है. सो इट इज सेड टू बी द नॉन टर्मिनेटिंग. और नंबर क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि 333 रिपीट होते जा रहा है तो इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ये दोनों को मिला के क्या बनता है? रिकरिंग बोलते हैं हम लोग इसको. रिकरिंग यानी कि हमने क्या पढ़ा? पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी रैशनल नंबर क्यों टर्मिनेट्स हो सकता है. देखा नहीं, रैशनल नंबर ही है तो उसको सॉल्व किया तो टर्मिनेट हो रहा है. ये रैशनल नंबर है सेकंड वाला, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, और रिकरिंग है. सो दिस इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर. Now come to the one more famous rational number, but some different property. वो है 22 upon 7. ठीक है, 22 upon 7. इन यार आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? यूज़ पाई इज इक्वल टू 22 upon 7.
तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू 22/7 है? नो, इन्होंने यूज़ लिखा, यानी कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल। तो देखते हैं कैसे है। अभी 22/7 तो हमें क्लियर दिख रहा है कि रैशनल नंबर है, तो कैसे रैशनल नंबर उसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। व्हेन आई डिवाइड इट, मुझे क्या मिलने वाला, ये 3.142857 एंड दिस पार्ट विल कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा ये। यानी कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर हुआ 22/7। अभी पाई के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं ये 22/7, यू जस्ट रिमेंबर इट। बिफोर दैट, उससे पहले मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताती हूँ कि इरेशनल नंबर क्या रहता है। यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ इरेशनल नंबर, सो रैशनल नंबर यू गेट कन्फर्म कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जस्ट टेक अपोजिट ऑफ दैट वन। क्या होगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश, इट विल नॉट टर्मिनेट ओवर। पर ये नॉन रिकरिंग भी रहता है, यानी कि इसके जो नंबर्स रहते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिकरिंग रहते हैं। और ये दोनों प्रॉपर्टी को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन रिपीटेड। और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग हुआ। अच्छा, अभी नॉन रिकरिंग तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे पाई। अभी आपके दिमाग में पाई बोलते ही क्या दिमाग में आता है? 22/7, बराबर है। whenever I will tell about the पाई, तो आप लोग बोलोगे 22/7 है, और 22/7 तो अपना रैशनल नंबर है, और मैडम बोल रही है पाई तो इरेशनल नंबर है, तो कैसे क्या हो सकता है? तो देखते हैं हम लोग। पाई मतलब क्या होता है बेटा? ये जो पाई का जो है, इसको भी हम लोग गोल्डन रेशो बोलते हैं। कि गोल्डन रेशो वो रेशो रहता है कि जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाएंगे तो उसका रेशो कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कौन सा रेशो है? इसका रेशो क्या है? दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल divided by the diameter you will get the constant ratio। कभी भी कितना भी बड़ा सर्कमफ्रेंस लो, डायमीटर लो, उसको जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो कोई कॉमन रेशियो मिलेगा जो सभी जगह सेम आने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ पाई बोलते हैं। अभी फिर जो पाई की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो इसको किसने डिस्कवर किया? आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया है। और उसको लगभग इसको सॉल्व करने के लिए ही टेक 8 आवर्स और कुछ भी सेकेंड्स लगे थे, बट स्टिल ही विल नॉट फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। वो उसको रिपीट ही करता रहा, और रिपीट नहीं, नंबर्स के अलग अलग आते ही रहे, नॉन रिकरिंग नंबर आते रहे, और ऊपर से टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था। तो इसका रिजल्ट आता था हमारे पास में 3.14152595 सो ऑन, मिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और सो कुछ 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 कुछ। तो ये 8 घंटा लगता था और ये फिनिश ही नहीं हो रहा था। तो इसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको समझ में आया बेटा? नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, और ये नॉन रिकरिंग टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring. So this is the property of a pi. So you understand the difference between the pi and the 22/7. So there is a lot of difference between the pi and 22/7. अभी एक क्वेश्चन आया था कभी तो भी NTSC में कि what is the pi minus 22/7? NTSC में भी पूछा गया था और IIT में भी पूछा गया था। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से बच्चे क्या लिखते हैं? पाई को लिख लेते हैं 22/7, और ये है हमारा 22/7 विच इज़ इक्वल टू 0। सो दे टिक द ऑप्शन 0 विच इज़
रॉन्ग। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका आंसर कैसे होना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया कि आगे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि पाई का वैल्यू क्या है 3.1415। हम लोग 3-4 सिग्निफिकेंट डेसिमल तक ले लेते हैं और यहाँ पे 3.142857 ये रिपीट हो रहा था। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यू आर गेटिंग द आंसर 0.02 अप्रॉक्सीमेटली, नॉट इक्वल। हाँ, अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है। सॉरी, .02 इज द आंसर। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा 0 नहीं रहेगा, 0.02 रहेगा। ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अपना टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट भी होता है, पर वो रिकरिंग हो जाता है। इरेशनल नंबर में क्या रहता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है। दिस इज ऑल द अबाउट योर रैशनल नंबर। नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स on the basis of this one कि which numbers are the irrational number you have to decide it. Wait a minute, ये थोड़ा सा घूमता है। Now which question number 1? Which of the following examples are irrational? ठीक है। So your first option is now you have to decide which numbers of the rational number, irrational number। ठीक है। irrational number that talking about the irrational। अभी देखो, you can you take out the square root of the 64? क्या आप ले सकते हैं square root of 64? yes, we can take the square root of 64, that is 8, it is 16, it is, तो ये क्यूब रूट ऑफ 343। तो क्यूब रूट ऑफ 3, जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 16 का स्क्वायर किया है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे नंबर का क्यूब करना चाहिए कि मेरा क्यूब रूट कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो? तो क्यूब रूट ऑफ 343, where is the marker? Hmm. 343। तो यू नो वेरी वेल कि 343 ये कब रहता है? अगर हम लोग 7 का क्यूब करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, ये क्यूब। तो ये क्यूब और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। तो आई एम गेटिंग दिस नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट व्हाट अबाउट दिस वन स्टूडेंट्स? कैन यू टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन? नो, वी कांट टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर, सो दिस इज सेड टू बी द इरेशनल नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ा ये बड़ी बात नहीं है। ऐसे ये एनटीएससी का क्वेश्चन है कि बहुत मुश्किल से हमसे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लोग सीरियसली इसकी स्टडी डीपली करेंगे सब बेसिक के साथ में तो बहुत आसान है। तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो, एक्सप्रेस हाँ, अभी व्हाट दे आर सेइंग, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यू हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड पी अपॉन क्यू। जब हमारे पास में कोई तो भी वो डेसिमल फॉर्म देते 3.14
फिर लेट x इज इक्वल टू 3.14, फिर पॉइंट के बाद में जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उतने हम लोग 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद में हम लोग उसको सॉल्व करके उसका फ्रैक्शन फॉर्म निकालते थे, बराबर, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो टुडे आई विल टेल यू सम ट्रिक अबाउट इट। पहले तो हम लोग उसका रेगुलर जो मेथड हम लोग जो 9th में पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताती हूँ कि क्या हम लोग पढ़ते थे। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, सपोज आई एम राइटिंग हियर, फाइंड द एक्सप्रेशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3.14 ले लेती हूँ मैं, ये रिपीट हो रहा है मेरा 3.14। आई हैव टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो पहले हम लोग क्या करते थे स्कूल में, x इज इक्वल टू 3.14 बार। कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों जगह, 100x और ये 3.14 बार मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये फिर क्या होता था हमारा 100x पॉइंट 2 नंबर के बाद में शिफ्ट हो जाएगा तो 314.14 बार। और फिर क्या करते थे, डू यू रिमेंबर ना, 100x माइनस x इज इक्वल टू 314.14 बार माइनस 3.14 बार। सो यू आर गेटिंग हेयर 99x इज इक्वल टू कितना रह जाएगा ये 311, x इज इक्वल टू 311 अपॉन 99। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना लॉन्ग मेथड। अभी हम लोग एनटीए से जैसे इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू दिस मैथ यूजिंग दिस मेथड, नो। सो फॉर दैट पर्पस लेट मी टेल यू सम सिंपल मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मेरे पास में नंबर है 3.14 बार। तो पहले क्या करना है, इस नंबर को सिंपल लिख लो 314, इसमें से माइनस करना है, माइनस उस नंबर को करना है कि जिस पे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 माइनस कर दो, और डिवाइडेड बाय उतना 9 जिस पे बार है। तो 2 नंबर पे 9 है तो 2 नंबर पे 9 लिख दो। ये आ जाएगा आपका 311 अपॉन 99। इज इट अ सिंपल वे? ओके, चलो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 0.3 एकदम सिंपल लिया इन्होंने, 0.3 बार। सिंपल, पहले 3 लिख लो, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, 1 9। इसको सिर्फ 3/9 लिखे, छोड़ नहीं देना है। फिर आप लोग बोलेंगे हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है कि वी आर नॉट, आवर ऑप्शन इज नॉट मैचिंग टू द गिवन ऑप्शंस। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई इट लाइक दिस 1/3 विच इज इक्वल टू 0.3 बार, है ना। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, 0.23 बार, 0.23 बार। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो नंबर है ये वाला 3.14, इसमें 14 पूरा डेसिमल के बाद का पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रिकरिंग। क्या है, बराबर है ना, 3.14 के आगे का 14 है वो प्योर रिकरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रिकरिंग। और ये भी पॉइंट के बाद का जो 3 है वो पूरा का पूरा रिकर हो रहा है, उसके अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं कि जो रिकरिंग नहीं, नॉन रिकरिंग है, वो रिकरिंग है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे प्योर रिकरिंग नंबर। बट यहाँ पे यू कैन सी दैट डेसिमल के बाद का 2 तो रिकर नहीं हो रहा है बट 3 रिकर हो रहा है, तो इसको हम लोग मिक्स रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स रिकरिंग। तो उसके मेथड में और इस मेथड में थोड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एज यूजुअल अपना नंबर लिख लो, लिख लिया नंबर। अभी जिस पे डेसिमल नहीं है वो नंबर को माइनस कर दो, उसके बाद में 9 एक लिख लेना है, और 9 के बाद में जिसके पर बार नहीं है फॉलोड बाय 0, बस यही बात याद रखना है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं दोनों में। 21/90 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 7 जा 330 जा, सो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ P अपॉन Q। ओके ओके, नाउ लेट अस टेक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो तीसरा 2.39 बार। स्टूडेंट यू सॉल्व विथ मी, चलो करेंगे, आप लोग भी करो वहाँ पे। अभी ये तो अपना कोई लाइव वीडियो नहीं है कि मैं आपको देख सकूँ, बट स्टिल 239 माइनस 2 अपॉन पूरे के ऊपर में डेसिमल है तो 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कंप्लीट 99 आने वाला है, तो ये आ जाएगा आपका 237 अपॉन 99।
ठीक है। सो टुडे व्हाट आई टॉट यू, रैशनल नंबर के बारे में पूरा बताया है, नंबर सिस्टम कैसे कैसे रहते हैं अपना, मैंने जिसमें आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में डीपली बताया। बाकी तो अपना इवन, नेचुरल, ऑड, ये सब आपको अच्छे से मालूम है क्या बोलते हैं, इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हाउ टू जज कि रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने कि पाई की बड़ी जो पाई की जो मिस्ट्री वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि पाई कैसे इरेशनल नंबर कैसे है, और 22/7 हम लोग पाई को इरेशनल बोल रहे हैं और 22/7 रैशनल बोल रहे हैं। तो पाई इज़ नेवर इक्वल टू 22/7 बिकॉज रैशनल नंबर इज़ नेवर इक्वल टू द इरेशनल नंबर। वो हम लोग लोअर क्लासेस में हमको सम सॉल्व करना रहता है तो हम लोग यूज़ लिखते हैं, दैट इज़ नॉट द इक्वल टू। ठीक है, नाउ कम टू द वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, which of following option is true? That is cube root of 0.037 बार। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ऑप्शन है ए 1/3, बी 0.3, सी बोथ, डी नन। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। क्यूब रूट ऑफ 0.037 बार। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अंदर के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या फ्रैक्शन पार्ट क्या आने वाला है, अभी मैंने सिखाया आप लोगों को कि 37 लिख लो और कितने नंबर डेसिमल के बाद में 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 के ऊपर में तो 999 लिख देना है यहाँ पे, सिंपल। और ये तो मालूम होना चाहिए 37 1 37, 37 27 जा, तो ये कितना आया मेरे पास में, क्यूब रूट ऑफ 1/27। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1/27 को 1/3 क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 3 क्यूब 27 और ये 3 गया और ये 3 गया, सो आई एम गेटिंग हेयर 1/3। तो ऑप्शन में मेरे पास में 1/3 भी है और 0.3 बार भी है और दोनों इक्वल है, सो दिस बोथ ऑप्शंस आर राइट, सो योर ऑप्शन शुड बी बोथ। ठीक है, मुश्किल है बिल्कुल नहीं। सो वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस। तो अभी आज के लिए मैं इतना ही लेती हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये डाइजेस्ट कर सको कि क्या है NTSC। इसके बाद में मैं पूरी तरह से आपका रेगुलर जो एक एक टॉपिक है उसको फिनिश करने की, और पहले तो इस पर आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए की माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलेला आहे आणि तुम्हाला समजतं आहे का नाही। तर तुमचे पहिले कमेंट्स पाहिजे मला ग्रुपवरती, आणि जर तुम्हाला पसंत असेल तर मी नक्कीच तुम्हाला फटाफट व्हिडिओ टाकेल, आणि इन दिस वे यू कॅन प्रिपेअर युअर NTSC व्हेरी वेल। जर तुम्ही NTSC प्रिपेअर केला चांगल्या पद्धतीने, ॲटलिस्ट मॅथ तरी तुमच्यामध्ये बघणार तुम्ही कॉन्फिडन्स खूप डेव्हलप होत आहे। ठीक आहे, तर मी आता बंद करते लेक्चर। ओके, बाय स्टुडंट्स, टेक केअर।